عزیزان محترم، سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حالات حاضرہ میں جہاں ایک طرف امت مسلمہ مسئلہ فلسطین پر پریشان تھی، وہاں نہ صرف یہ کہ مسئلہ فلسطین حل ہوا بلکہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے پہلگام کے واقعے کو عذر بنا کر ملک پاکستان ہمارے دلوں کی جان اس دھرتی پر راتوں رات ایک بزدلانہ حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ایک بزدل قوم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شہریوں پر نہتے لوگوں پر حملہ کرنا جانتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں اس مسئلے پر کچھ روشنی آپ حضرات کی خدمت میں ڈالوں گا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ایک بات تو بڑی واضح ہے، وہ یہ کہ قرآن نے ہمیں پہلے سے آگاہی دی تھی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ سب سے پہلے یہودی ہے۔ قرآن نے کہا اس کے بعد تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ مشرک ہے۔ سرزمین فلسطین پہ لڑائی یہودیوں سے ہو رہی، ہمسائے ملک میں لڑائی مشرکین سے ہو رہی، یہ دونوں سب سے بڑے دشمن۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ حقیقت میں دونوں ایک ہی ترازو کے دو چٹھے بٹھے ہیں۔ آج سے کچھ دن پہلے جب مسئلہ فلسطین عروج پر تھا تو اس نریندر مودی نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ آج اسی پر 1947 میں پاکستان جب وجود میں آیا تھا، فلسطین میں خوشی کی لہریں دوڑی تھی جب پاکستان وجود کے اندر پاکستان کو اللہ نے ایٹمی طاقت بنایا تھا، فلسطین والوں نے پرچم لہرائے تھے۔ آج میرے دوستوں 1947 سے لے کر غور کرتے آئیں کہ 1948 میں بھی ہمارے مقابلے میں آتے رہے، 65 کی جنگ میں لڑتے رہے، 71 کی جنگ میں مقابلے میں آتے رہے۔ ان کو تکلیف ہے اس بات سے کہ ایک ہی مسلمانوں کی ایٹمی طاقت ہے جو کسی وقت بھی اسرائیل کو ناکو چنے چبوا سکتی ہے۔ اس لیے یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا نریندر مودی ہو یا ان کی شکلوں میں دنیا کا کوئی اور کفر ہو، قرآن کے فیصلے سچ اور پر حق ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات، اس موقع پر اس مسئلے پہ کثرت سے بحث ہو رہی ہے، وہ مسئلہ غزوہ ہند ہے۔ اس کو غزوہ ہند بھی کہتے ہیں، اس کو غزوہ سندھ بھی کہتے ہیں۔ میرے دوستو، محدثین اصحاب سیر نے اس حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو بنیادی طور پر 3 حدیثیں ہیں، ویسے تو جمع کی جائیں تو 5 حدیثیں ملتی ہیں، لیکن 3 حدیثیں، ایک حدیث حضرت ثوبان سے ہے جو اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام ہیں، 2 روایتیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں، چوتھی روایت حضرت صفوان سے ہے، وہ بھی دراصل روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، 5ویں روایت حضرت کعب کی ہے۔ حضرت کعب کی روایت کو محدثین نے بہت کمزور بتلایا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اصل روایتیں 3 ہی۔ اب یہ غور کرنا روایتیں کیا ہیں۔ آپ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
अन सौबान मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हज़रत सौबान, ये रिवायत मुस्नद अहमद में है। हज़रत सौबान जो अल्लाह के नबी के आज़ाद करदा ग़ुलाम है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसाबतान मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन्नार। मेरी उम्मत में दो जमातें होंगी, दो गिरोह होंगे। ये वो लोग होंगे कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गारंटी देता हूँ कि अल्लाह इनको जहन्नुम से आज़ाद फरमाएंगे। पहला गिरोह कौन सा होगा? फरमाया इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद। पहला गिरोह वो होगा जो हिंदुस्तान में जिहाद करेगा। आपने फरमाया दूसरा गिरोह वो होगा जो ईसा इब्ने मरियम के साथ जिहाद करेगा। पहला गिरोह जिसको अल्लाह जहन्नुम से आज़ाद फरमाएंगे, जो हिंदुस्तान का गज़वा लड़ेगा। दूसरा गिरोह जिसको अल्लाह आज़ाद फरमाएंगे जहन्नुम से, जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा। ये रिवायत सही है, अगर सही ना मानी जाए तो कम अज़ कम हसन ज़रूर है। दूसरी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया वाअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतल हिंद। अल्लाह के नबी ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा किया था। अल्लाह के नबी ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा किया था। और आगे आप फरमाते हैं कि मैंने भी अल्लाह के नबी से ये वादा किया था कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में ग़ज़वा हिंद पाया, मेरे ज़माने में ग़ज़वा हिंद हो गया, हिंदुस्तान की लड़ाई हो गई, तो अबू हुरैरा अपना जानो माल इस रस्ते में लौटा देगा। और अगर अबू हुरैरा फ़इन उक़तल, अगर अबू हुरैरा इस रस्ते में शहीद हो गया, कुन्तु मिन अफ़ज़लिश शुहदा, अबू हुरैरा सब शहीदों में बेहतरीन होगा। और अगर अबू हुरैरा वापस आ गया, गाजी बन के आ गया, हिंदुस्तान के महाज से गाजी बन के वापस आया, तो अबू हुरैरा को जहन्नुम से आज़ाद कर दिया जाए। तीसरी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से ही है। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस, और हज़रत अबू हुरैरा से मिलती जुलती जो एक रिवायत जो मैंने बताया था ना कि असल में वो दोनों एक ही हैं, उसमें हिंद के साथ सिंध का लफ्ज़ भी है। आपने फरमाया इस्लामी लश्कर जाएंगे, सिंध और हिंद की तरफ जाएंगे। और यही बात हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाई कि मैं इसमें शरीक होकर शहीद हो जाऊंगा, और अगर मैं बचा तो मैं इंशाअल्लाह जहन्नुम से आज़ाद हो जाऊंगा। एक और रिवायत जो हज़रत अबू हुरैरा की है, उसमें फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, एक वक़्त आएगा कि लोग हिंदुस्तान में जिहाद करेंगे, हिंदुस्तान के बादशाहों को, हिंदुस्तान के राजाओं को बेड़ियां डालकर पकड़ के लाएंगे, और जब ये पकड़ के मुल्क शाम पहुँचेंगे, इनकी ईसा इब्ने मरियम से मुलाकात होगी। फरमाया वो लोग जो यहाँ लड़ने वाले होंगे, अल्लाह इनको जहन्नुम से आज़ाद फरमा देंगे। ये तीन किस्म की बातें, तीन रिवायतें मैंने आपके सामने पेश की कि अल्लाह के महबूब के सामने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु इस ग़ज़वे में लड़ने की कितनी बड़ी तमन्ना कर रहे हैं। अब यहाँ इस हदीस से हमें तीन हदीसों से चंद बातें समझ में आई। नंबर एक तो ये बात समझ आई कि सिंध और हिंद, हिंदुस्तान और सिंध, ये मेरे नबी के दौर में मौजूद था। इसीलिए आपने फरमाया कि सिंध और हिंद का जिहाद होगा। सहाबा ने नहीं पूछा ऐ अल्लाह के नबी सिंध कहाँ होगा, हिंद कहाँ होगा। इससे पता चलता है कि सिंध भी मौजूद था, हिंद भी मौजूद था। बल्कि अगर तारीख का मुताला किया जाए तो तारीख की किताबों से पता चलता है कि आज बर्रे सगीर को तकरीबन 5000 साल से भी ज़ायद हो चुके हैं।
बर्र सगीर कहने को बर्र सगीर है, दरअसल ये बर्र अजीम है, क्योंकि ये इतना बड़ा बर्र अजीम है कि बर्र आदम ऑस्ट्रेलिया के करीब है। इसकी आबादी बर्र आदम ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से ज़्यादा है। ये बर्र अजीम हुजूर के ज़माने में भी मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ चच नामी एक बादशाह था, जिसका दारुल हुकूमत रोड़ी के करीब था। और यहाँ से जब इसने सफ़र किया, यह मकरान की तरफ गया, तो उस वक़्त अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके थे। इसलिए आपने फरमाया कि ग़ज़वा सिंध और हिंद होगा। एक बात तो हमें ये पता चली कि सिंध और हिंद की तारीख़ उस वक़्त से चली आ रही। दूसरी बात ये पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुवाफिक इन सरजमीनों पर जिहाद होगा, जंग होगी। तीसरी बात ये पता चली कि इंशाअल्लाह फ़तह अल्लाह मुसलमानों को अता फरमाएंगे, फ़तह इंशाअल्लाह अल्लाह मुसलमानों को अता फरमाएंगे। चौथी बात ये पता चली कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को आपने फरमा दिया कि अबू हुरैरा, ये जिहाद इतना मुबारक है, जो इस जिहाद में शिरकत करेगा अल्लाह उसको जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा देंगे। बड़ा मुबारक जिहाद होगा। पांचवी बात ये पता चली कि एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, जब ये वक़्त होगा ना ग़ज़वा हिंद, मैं भी लड़ूंगा, और लड़ते लड़ते जब मैं ईसा इब्ने मरियम के पास पहुंचूंगा, मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जाके सबसे आगे बढ़ के तारुफ़ कराऊंगा। क्या तारुफ़ कराऊंगा? मैं कहूँगा कि मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ, मैं आपको तारुफ़ करवाने आया हूँ। आपने फरमाया, हैहात हैहात, नहीं नहीं अबू हुरैरा, ये तुझसे बहुत दूर है, ये तुझसे बहुत दूर है, तू इस ग़ज़वे में शिरकत नहीं कर सके। लेकिन मेरे दोस्तों, इसमें चंद बातों की हदीस में वजाहत नहीं आई। एक तो इस बात की वजाहत नहीं आई कि हिंदुस्तान से कौन सा हिंदुस्तान मुराद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने वाला, या आज का हिंदुस्तान, या उस ज़माने का सिंध मुराद था, या आज के ज़माने का सिंध है। आज सिंध सिर्फ एक सूबा है, उस वक़्त का अगर सिंध देखा जाए तो हकीकत में पूरा पाकिस्तान सिंध बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का सिंध मुराद है या आज का सिंध मुराद है? नंबर दो, आपने इस बात की कोई वजाहत नहीं की कि ये ग़ज़वा हो चुका है या आने वाले ज़माने में होगा, कब होगा, किस वक़्त होगा। तीसरी बात जिसकी आपने वजाहत नहीं फरमाई कि इस ग़ज़वे में लड़ने वाले मुजाहिदीन वो इसी सरज़मीं पे रहने वाले होंगे या किसी और सरज़मीं से आकर जिहाद करेंगे। इसीलिए मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने इन हदीसों की वजाहत करने में बड़ी तशरीह की। मुहद्दिसीन की एक जमात का कहना यह है, चार राय मुहद्दिसीन की मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, सुन लें और आखिर पे इंशाअल्लाह अपना मौक़िफ़ पेश कर दें। पहला मौक़िफ़ ये है कि ये ग़ज़वा अभी नहीं हुआ, ये होगा लेकिन बहुत दूर होगा, क़यामत के करीब होगा, ज़माने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगा, और उससे पहले क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ होंगी। अल्लाह की हिफाजत फरमाए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले तमाम इस्लामी रियासतें ख़त्म हो जाएंगी, इस्लाम सिर्फ मदीना मुनव्वरा में बाकी रह जाएगा, हरमैन शरीफैन में इस्लाम रहेगा। आपने फरमाया ये वो वक़्त होगा, इन्नल ईमान ला यअरिज़ इलल मदीना, ईमान मदीने की तरफ सिमट के ऐसे आ जाएगा जैसे सांप सिमट के अपनी बिल की तरफ आ जाता है। यहाँ से इस्लाम का आगाज़ हुआ था, इस्लाम पलट कर उसी नुक्ते पे बंद हो जाएगा, और उस वक़्त फितने फसादात के ज़माने में
इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, उस ज़माने में ग़ज़वे हिंद होगा। मैं कहता हूँ, बल्कि उलमा हमारे अकाबिर कहते हैं कि ये राय इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए कि ये कौन सी करीने से आप कह सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक दलील है कि वो जमात जो ग़ज़वे हिंद करके जाएगी उसकी ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी, तो ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की वजह से तुम ये कहते हो कि ये जिहाद आखिर पे होगा। तो हम कहते हैं हो सकता है उस ज़माने में भी ग़ज़वे हिंद हो और अब भी हो रहा हो ग़ज़वे हिंद। दूसरी उलमा की जमात एक राय ये देती है कि ये ग़ज़वा हो चुका है। वो कहते हैं इस हिंद और सिंध से मुराद हिंदुस्तान और सूबे सिंध नहीं, बल्कि इनके आस पास के इलाके, इराक़, बगदाद, जितने फारिस से लड़ाइयाँ हुई वो सब के सब ग़ज़वे हिंद थे, यानी ये हो चुके। ये भी राय कोई इतनी मुस्तनद मजबूत राय नहीं, इसलिए कि हुजूर ने बाकायदा हिंद और सिंध का नाम लिए और इमाम इब्ने कसीर ने सिंध का नाम लेते हुए मोहम्मद बिन कासिम का तस्करा किया है, सुल्तान महमूद गजनवी का नाम लिया है। इससे यह पता चलता है कि नहीं नहीं, हिंद और सिंध से मुराद हिंदुस्तान और सिंध ही मुराद। तीसरी एक जमात की राय ये है कि यह ग़ज़वा हो तो चुका है, हिंदुस्तान में ही हुआ है, सिंध में ही हुआ है, लेकिन इस ग़ज़वे की इब्तिदा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने से लेकर सुल्तान महमूद गजनवी पर ख़त्म हो जाती, यहाँ ख़त्म हो जाती। हम कहते हैं इस पे भी कोई दलील नहीं। चौथी राय और हमारा मौक़िफ़ और मजबूत तरीन बात यह है कि जितने भी जिहाद इस सरजमी पर होंगे, जितने जिहाद बर्रे सगीर पाको हिंद में होंगे, वो सरजमीन हिंदुस्तान पे हो, वो सरजमीन सिंध पर हो, सब के सब ग़ज़वे हिंद है। इन सब लड़ाइयों में शरीक होने वालों को अल्लाह जहन्नुम से आज़ाद फरमाएंगे। इन सब के लिए ये फ़ज़ाइल साबित हैं। इसीलिए सबसे पहले हिंदुस्तान में जिहाद का आगाज़ सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में मुसलमान जिहाद करने के लिए आए, हालात का जायज़ा लेकर वापस चले गए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में आपने बाकायदा जिहाद किया। हारिस बिन मुर्रा सहाबी ने सिंध में दाखिल होकर और बहुत सारा हिस्सा फतह किया, लेकिन जब ये वापस जा रहे थे, कई कान, ये सिंध में ही एक इलाका है, वहाँ वो शहीद हुए और वहीं उनकी कब्र बन गई। हारिस बिन मुर्रा के बाद हज़रत मुहल्लब बिन अबी सुफरा को अमीर बनाया गया। हज़रत मुहल्लब के बाद इसी तरह तरतीब से चलते हुए सहाबा आते रहे और इन इलाकों को फतह करते रहे। वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में 86 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने चचाजाद भाई और अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की फतह के लिए भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दहर को शिकस्त देकर सिंध फतह किया था। मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी आए थे। सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में अजीब बात मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने ऊपर हिंदुस्तान का जिहाद फ़र्ज कर लिया था कि मैं वो फजीलत हासिल करना चाहता हूँ जो अल्लाह के नबी ने ग़ज़वे हिंद के बारे में दी है, मैं यहाँ लाजमी लड़ूँ। चुनाचे जब सुल्तान महमूद गजनवी आए, हिंदुस्तान के अंदर इलाकों के इलाके फ़तह करते हुए आए। अल्लामा ज़हबी ने लिखा है कि सोमनाथ का मंदिर आपने फ़तह किया। ये किला सोमनाथ जब आपने फ़तह किया, इसमें एक बहुत बड़ा बुत था। हिंदुओं का अकीदा ये था कि ये बुत हमें ज़िंदगी देता है, हमें मौत देता है, इस बुत से हमारे मसले हल होते हैं।
सुल्तान महमूद गजनवी ने उस सोमनाथ के बुत को तोड़ दिया था और हिंदुस्तान के लोग समझ गए थे कि आज के बाद हिंदुस्तान हमारे हाथ से निकल चुका है। मेरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान की मोटी मोटी तारीख, वरना इसके लिए एक जुमा काफ़ी नहीं, कई जुमों की ज़रूरत है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, कम अज़ कम हमारे नौजवान तबके से दरख्वास्त है कि अल्लाह के वास्ते अपने अकाबिर की दास्तानें पढ़ो, अपने अकाबिरीन की ईमान की कारगुजारियाँ पढ़ो। सिर्फ यहाँ तक चंद जोग्राफियाई हदूद तक महदूद ना रहो। सबसे बड़ा फितना क्या है? आज हमारी नौजवान नस्ल को अपनी इस्लामी तारीख मालूम नहीं, इस्लामी हिस्ट्री मालूम नहीं। मेरे दोस्तों, ये हिस्ट्री मालूम नहीं होगी तो बड़ी गलतियों का शिकार हो जाएंगे। खुलासा क्या निकला कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने से लेकर, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के ज़माने से लेकर तमाम के तमाम जिहाद जो 1948 तक हुए या 65 की जंग में हुए या 71 की जंग में हुए, ये सब के सब गज़वे हिंद है और क़यामत की सुबह तक जिहाद होते रहेंगे, गज़वे हिंद होते रहेंगे। आखिरी जिहाद जो हिंदुस्तान की सरजमी पर होगा वो इमाम महदी की क़यादत में होगा। हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। इसलिए इस जिहाद पे लड़ने वाले हमारे मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज से कहना चाहता हूँ, आप बड़े खुश नसीब हैं, आप बड़े नसीबे वाले हैं। अल्लाह ने आपको फिर ग़ज़वा हिंद में शिरकत का मौका दिया, इसमें अपनी शहादतों की दास्तानें रकम करने का मौका दिया, अपने जौहर दिखाने का मौका दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हासिल करने का मौका दिया। इख्तिलाफ राय हर किसी को हो जाता है, लेकिन एक बात याद रखना, आज अगर मुल्क पाकिस्तान महफूज है, बात कहने में मुझे किसी का कोई डर नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से है। अल्लाह के फजल से हमारी फ़ौज दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज है, मजबूत तरीन है। रातों रात अंधेरे में इन जालिमों ने हमला किया और अल्लाह के फजल से हम तो घरों में आज अगर मीठी नींद सो रहे हैं, हमारे बच्चे अगर चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो यह मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज का किरदार है कि रात के अंधेरों में भी उनका मुकाबला किया, हर महाज पे मुकाबला किया और अल्लाह के फजल से ऐसा जवाब दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, बेहतरीन अंदाज से जवाब दिए। हम लड़ाइयों के हक में नहीं, हम नहीं कहते कि हर वक्त लड़ाई हो। हिंदुस्तान में भी मुसलमान बसते, पाकिस्तान में भी मुसलमान हैं। दो एटमी ताकतों के लड़ने से बड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन अगर कोई हरकतों से बाज ना आए, अगर कोई कश्मीर पे, कब से ये दरिंदा आदमी कश्मीर पे जुल्म की दास्तानें रकम कर रहे और अभी भी बाज नहीं आया, कितने हमारे बच्चे शहीद कर दिए, मस्जिद पे हमला, मदरसे पे हमला, बच्चों पे हमला। तो ऐसे मौके पर जिहाद और साबित कदमी का इस्लाम हुक्म देते हैं और इस्लाम ये बताते कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इस्लाम सिर्फ मीटिंगों का नाम नहीं, सिर्फ गोल मेज कॉन्फ्रेंसों का नाम नहीं। आप देख लें, कश्मीर का जो छोटा सा हिस्सा जो उस वक़्त मुजाहिदीन ने लड़के फतह किया था, आज तक वो हमारे पास है, उससे ज़्यादा 1 इंच भी हासिल नहीं कर सके। इसलिए कि मसाइल का हल कॉन्फ्रेंसों से नहीं। आज दुनिया ताकत के नशे पे लड़ती है। अमेरिका ताकत के नशे पर कभी फ़लस्तीन को ललकारते, कभी पूरी दुनिया की ताकतों को ललकारते, साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में कहते हैं कि गज़ा के मुसलमानों का वाहिद हल है कि फ़लस्तीन छोड़कर चले जाएं। और जब ये हम पे हमला करें, हम बुज़दिली का सबूत दें। नहीं, इस मौके पर इस्लाम भी कहते हैं कि मुकाबले का जवाब होना चाहिए।
बराबरी का जवाब होना चाहिए। एक बात फरमाई। और सूरह अनफाल में अल्लाह ने हमें जिहाद के इस मौके पे अहकामात दिए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम, ए ईमान वालो जब तुम्हारा मुकाबला हो, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, एक जमात से तुम्हारा टकराव हो तो तुम 5 काम करना। ए ईमान वालो जब तुम हालत जंग और हालत जिहाद में हो तो 5 मैदान है तुम्हारे पास। फस्बुतू, पहला काम ये करना कि डट जाना, साबित कदम रहना। यानी कुरान ने ये नहीं कहा कि ईमान वालो जब तुम्हारी लड़ाई हो तो चुप करके घरों में सो जाना, मुसल्ला बिछा लेना, हाथ उठा के दुआएं कर लेना, आंसू बहा लेना। मेरे दोस्तों, अगर मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे नबी ने तलवार भी उठाई है, मेरे नबी 27 गज़वात में बनफ्से नफीस शरीक हुए हैं। 10 साल मेरे नबी की मदनी ज़िंदगी में 27 गज़वात में अल्लाह के नबी बनफ्से नफीस तशरीफ़ ले गए। कोई 250 के करीब गज़वात हैं जिसमें आपके हुक्म पर सहाबा तशरीफ़ ले गए। इसलिए इस्लाम बदर, ओहद के, खंदक, हुनैन के, तबूक के मारके भी दिखाते हैं कि नहीं, जहाँ जिहाद की बात हो वहाँ जिहाद करना पड़ेगा। फस्बुतू, साबित कदम हो जाओ, लड़ना पड़ेगा, तलवार उठानी पड़ेगी। ये नहीं कि जिक्र करो बस जी, बैठ के तबसरे करो और मुजम्मत बयान कर दो और ये कहो कि हमें बड़ा अफसोस हुए। नहीं नहीं नहीं, फस्बुतू, साबित कदम रहो। क्या फरमाया दूसरी जगह पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो तुम सब्र करो, तुम जमे रहो, तुम मोर्चों पे डटे रहो, अल्लाह से डरते रहो, कामयाबी इंशाअल्लाह तुम्हारे कदम चूमेगी। लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम कामयाब हो जाओ। तो सबसे पहला काम फस्बुतू, साबित कदम रहो। दूसरा काम क्या फरमाया, वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। अब बंदा कहे अच्छा, अगर ये बात कोई मौलवी करता ना कि लड़ाई का मौका है अल्लाह का जिक्र करो, तो कहते हैं लो मौलवियों की बातें सुन लो, मौलवियों की बातें सुन लो। अल्लाह कह रहे हैं वज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र थोड़ा नहीं, कसीरन, ज्यादा करो। अच्छा, नुक्ते की बात बताऊं, अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं नहीं कहा सियामन कसीरा, ज्यादा रोजे रखो, सलातन कसीरा, ज्यादा नमाजें पढ़ो। जिक्र के बारे में कहा कि जिक्रन कसीरा, जिक्र ज्यादा करो, इसलिए कि जिक्र एक ऐसी इबादत है, वुजू के साथ भी की जा सकती है, बेवुजू भी की जा सकती है, खड़े होके भी की जा सकती है, बैठे लेटे भी की जा सकती है, चलते फिरते भी अल्लाह को याद किया जा सकता है। और इस्लाम ने बड़ा बेहतरीन दर्स दिया कि यह भी ना समझना कि जिक्र काफ़ी है, तलवार की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं तलवार भी उठानी पड़ेगी। काफिरों की तरह यह भी ना समझना कि हम सिर्फ हथियार पे भरोसा करेंगे, हथियार भी उठाने हैं, अल्लाह पे भरोसा भी करना है, दोनों काम करने हैं। ताकि अगली बात सुने, तीसरा काम तुमने ये करना है, व अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह की माननी है, अल्लाह के रसूल की बात माननी। मेरे दोस्तों, जब मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह की नुसरत हट जाती, अल्लाह की मदद रुक जाती। मुसलमान मैदान जिहाद में तलवार, टैंक, गोली बारूद के साथ इसलिए नहीं आता कि इसका यकीन गोली बारूद पे होता है, यकीन तो अल्लाह की ज़ात पे होता है। हाँ, मोमिन तो अल्लाह के भरोसे पे लड़ता है,
یہ تو کافر ہے جو شمشیر پہ بھروسہ کرتے ہے، مسلمان اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ تیرا حکم ہے، تیرا حکم سمجھ کے میں اٹھا کے آ رہا ہوں۔ لیکن اگر اللہ کے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے تو میرے دوستو اللہ کی مدد ہٹ جاتی۔ اس لیے بھائیو یہ جتنے غزوات اور حالات پیش آ رہے ہیں، سب سے پہلے ہمارا کیا کام ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کریں۔ سود کھانے والا سود سے توبہ کرے، زانی زنا سے توبہ کرے، چور چوری سے توبہ کرے، شرابی شراب سے توبہ کرے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے توبہ کرے، اپنا انصاف کا قلم بیچنے والا ظلم سے توبہ کرے، رشوت خور رشوت سے توبہ کرے، ڈنڈی مارنے والا ڈنڈی سے توبہ کرے، اور گانے سننے والے گانے سننے سے توبہ کریں۔ ساری ساری رات میوزک کی دھن پہ ناچنے والے میوزک سے توبہ کریں۔ ناجائز اور غلط چیزیں دیکھنے والے، غلط سننے والے، غلط بولنے والے، اور آپس میں توبہ کریں۔ توبہ اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ کی دیکھیں نا، اب نتیجہ اللہ کے فضل سے میں نے آگے بھی بتایا اور بتاؤں گا کہ ہماری فوج نے اچھا جواب دیا، اچھا مقابلہ کیا، بہترین لڑائی ہو رہی، لیکن اس کے باوجود ایک نقصان جس کا بہت بڑا خدشہ ہے، وہ نقصان یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین پس منظر میں چلا گیا، مسئلہ غزہ پس منظر میں چلا گیا، امت کی نظریں فلسطین سے ہٹ گئیں، امت کی نظریں غزہ سے ہٹ گئیں۔ یہ بڑے خدشے کی بات ہے۔ اس لیے بھائیو ہر ایک سے ہر وقت جنگ نہیں چھیڑی جا سکتی، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ تین کام ہو گئے۔ چوتھا کام بہت اہم کام، قرآن نے بڑی اہم بات کی، وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَنَازَعُوا، لڑائی جھگڑے نہ کرو، آپس کے اختلافات سے بچو۔ قرآن کہتے اگر تم آپس کے اختلافات سے نہیں بچو گے تمہیں دو نقصان ہوں گے، فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ تمہاری ہوا نکال دیں گے، اللہ تمہاری ہوا نکال دیں گے۔ میرے دوستو آج یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ کافروں کے چار بڑے محاذ ہیں جن پہ کافر آج محنت کر رہے۔ سب سے پہلا بڑا محاذ سوشل میڈیا کا محاذ ہے۔ نمبر دو، کافر جس محاذ پہ محنت کر رہے معیشت اکنامکس کا میدان ہے۔ معیشت اتنی مضبوط کرو، اپنی پروڈکٹ ایسی اعلیٰ تیار کرو کہ مسلمان اگر بائیکاٹ بھی کرنا چاہے تو نہ کر سکے۔ تیسرے نمبر پر فحاشی عام کر دی جائے، فحاشی پھیلائی جائے۔ چوتھے نمبر پر ان کو آپس میں لڑایا جائے اور ان پر حکومت کی جائے۔ یہ چوتھا بڑا میدان ہے۔ قرآن نے ہمیں اس دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاش بن قیس ایک یہودی تھا، بوڑھا یہودی۔ یہ جا رہے رستے میں اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج، مدینے میں جو یہ قبیلے آباد تھے نا، اوس اور خزرج ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ اللہ کی شان، میرے نبی پر ایمان لانے والے اور انصار کا ٹائٹل حاصل کرنے والے یہی اوس اور خزرج بنے۔ میرے نبی کی محنت سے ان کی لڑائیاں ختم ہو گئی۔ اوس اور خزرج اکٹھے بیٹھے ہوں۔ وہ یہودی پاس سے گزر کے کہنے لگا اگر یہ اوس اور خزرج آج اکٹھے ہو گئے نا تو ہماری محنت تو بیکار ہو گئی، ہمارا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ پھر اپنے اس ساتھ ایک لڑکے سے کہنے لگا بیٹا تم جاؤ اور جا کے ان میں لڑائی کراؤ۔ وہ اترا، اس نے اوس اور خزرج کے درمیان میں بیٹھ کے، ایک پہلے عربوں میں جنگ ہوئی تھی، جنگ بواس، یہ اوس اور خزرج کے آباء و اجداد نے لڑی۔
उस जमाने में अरब जब लड़ते थे तो एक दूसरे के खिलाफ शेर व शायरी करते थे। इस आदमी ने बीच में एक चंगारी सुलगाई, इसने वो कबीले बुआस, वो जंगे बुआस का एक शेर पढ़ दिया। सहाबा थे, अंसार थे, लेकिन पुराना जमाने के तासुब के एक नारे ने सहाबा के अंदर आपस में लड़ाई भड़का दी। इधर औस अपने आबाओ अजदाद की सिफात में शेर पढ़ रहे हैं, इधर खजरज अपने आबाओ अजदाद की शान में शेर पढ़ रहे हैं। जहां तक के तलवारें निकल आई, एक दूसरे के आमने सामने हो गए। इधर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने देखा कि दोनों तरफ तलवारें निकल आई। अल्लाह के महबूब का चेहरा अनवर सुर्ख हो गया। आपने फरमाया, क्या इस्लाम के बाद भी जाहिलियत की जिंदगी गुजारोगे? क्या अभी भी अंधेरों की जिंदगी गुजारोगे? क्या तुम्हें अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक नहीं दी? अभी भी तुम पुरानी जाहिलियत पे तलवारें निकालते हो। सहाबा की तलवारें वापस गईं और रो रो के आपस में गले लगने लगे, अल्लाह के महबूब से माफ़ी मांगने लगे। मेरे दोस्तों, आज भी दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार है, कहीं आपस में मौलवियों को सुन्नियत और शीयत की बुनियाद पे, कहीं देवबंदियत बरेलवियत की बुनियाद पे लड़ाइयाँ हो रही, कहीं आमीन की बुनियाद पे झगड़े हो रहे, कहीं रफा यदैन के मसले पे झगड़े हो रहे। उलमा और आइम्मा आपस में इकट्ठे नहीं होने दिए जा रहे, बल्कि कहीं कहीं ऐसे झगड़े खड़े किए, सियासत के झगड़े। देखे, मुल्क पे हमला हुआ और पूरा मुल्क पाकिस्तान है। इंडिया जब हमला करेगा तो वो पीटीआई को निशाना नहीं बनाएगा, नून लीग पे हमला नहीं करेगा, पीपल्स पार्टी पे हमला नहीं करेगा, वो मुल्क पाकिस्तान पे हमला करेगा। लेकिन सियासत की आपस में, इस सियासत ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया, रिश्ते टूट गए। जिस महफिल में बैठ जाओ गालम गलोच पे बात खत्म होती है, बल्कि हमें तो डर लगने लगा। और लोग कहते हैं मौलवियों का सियासत से क्या ताल्लुक है, और तुम्हें सियासत भी उलमा सिखाएंगे, तुम्हें दीन भी उलमा सिखाएंगे। सियासत, सही सियासत किसे कहते हैं? ये सियासत थोड़ी है किसी की माँ बहन का दुपट्टा उतार दो, किसी की इज्जत को तार तार कर दो, जिस पे जी चाहे तबसरे करो। मुल्क पे हमला हुआ, लेकिन अल्लाह का फजल है, मुझे खुशी है, मैंने अपने ईवान की तकरीरें सुनी। अल्लाह के फजल से तमाम पार्टियों की, तमाम जमातों के तमाम नुमाइंदों ने, हर एक ने मुत्तफिक होकर मसले हिंदुस्तान पे बात की। लेकिन अफसोस है हमारे निचले तबके पर वो अभी भी इन बातों पे पड़े हुए हैं कि कौन हक पे है, कौन नाहक है, कौन सही है, कौन गलत है। और खुदा के बंदो, कुरान कहते हैं लड़ाई से बचो, मुत्तहिद हो जाओ, एक मुट्ठी में बंद हो जाओ। अगर तुम एक मुट्ठी बन के लड़ोगे, तुम छोटी सी जमात हो गए, अल्लाह तुम्हें पूरी दुनिया पे फतह अता फरमा देगा। जितने सरजमी पर आज मुसलमान मौजूद हैं, कभी किसी जमाने में इतने मुसलमान नहीं हुए। लेकिन अगर सच पूछो, जितने जलील आज हो रहे हैं कभी नहीं हुए। एक रबीई बिन आमिर रुस्तम के दरबार में खड़े होके कहते हैं, और रुस्तम, मैं अल्लाह के नबी का नुमाइंदा बन के आया हूं। गधे पे बैठ के गए और अपनी तलवार पे चेथड़े लपेट कर गए, रुस्तम का कालीन फाड़ते हुए गए, रुस्तम के तख्त पर छलांग लगाकर बैठ गए। पूरे दरबार में मेरे नबी का एक नुमाइंदा था। ये कभी मुसलमानों की शान हुआ करती थी। आज 56 से जायद इस्लामी मुल्क है, किसी की ललकार, किसी का रोब वो रोब नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? आपस का इख्तलाफ। इसलिए भाइयों, एक तो सबसे गुजारिश है कि आपस के इख्तलाफात मिटाएं, सियासत को इस बुनियाद पे न चमकाएं। देखें, मियाँ बीवी का आपस में इख्तलाफ हो जाते हैं, अब बाहर से कोई आके शौहर पे हमला करे या आपकी बीवी पे कोई हमला करे, बंदा कहे इसे मारता रहे, मेरी इसकी लड़ाई चल रही। बगदाद, जिस वक्त बगदाद की सल्तनत खत्म हुई, हलाकू ने बगदाद पे चढ़ाई की, उलमा आपस में
इस्तिंजे के मसाइल पे इख्तलाफ कर रहे थे, दुश्मन मुल्क पे चढ़ दौड़ा था, इनका इख्तलाफ नहीं हल हो रहा था। और मेरे दोस्तों, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, इन इख्तलाफात से बालातर होके अपना सीना कुशादा करके मुल्क के एक होने की बुनियाद पर इकट्ठे होके सोचें, लड़ाई की बुनियादों पे नहीं। अगर कोई अच्छा काम करे उसको सुराहो, किसी से इख्तलाफ हो उससे इख्तलाफे राय रखो। किसने मना किए? कुरान ने क्या कहा? लड़ो नहीं, लड़ोगे दो नुकसान होंगे, तुम बुज़दिल बन जाओगे, तुम्हारी हवाएं निकल जाएंगी। और अगली बात क्या फरमाई? फरमाया वस्बिरू, सबर करना, सबर, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ। 5 बातें मेरे दोस्तों मैंने बताई कुरान की आयत से, फिर दोहरा रहा हूं। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारी लड़ाई हो साबित कदम रहो, फस्बुतू, साबित कदम रहो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फर्मा बरदारी करो, आपस के झगड़ों से बाज आ जाओ। और 5वीं बात कुरान कहते हैं सबर का दामन थामे रखो। जो आखिरी बात मैं करने लगा था कि इस वक्त का एक अहम महाज मैंने बताया कि दुश्मन का अहम महाज सोशल मीडिया है, कि सोशल मीडिया के जरिए से वो अपने प्रोपिगंडे को फैलाते हैं। अल्लाह के वास्ते यह कुरान भी हमें हुक्म देता है कि अगर तुमने कोई बात करनी है, ऐसी बात करो जिससे हमारे मुल्क के हुक्मरानों का हौसला बुलंद हो, हमारी फौज का हौसला बुलंद हो, हमारे मुल्क की पुख्तगी का सबूत जाए। मायूस कुन बातें न करो। उन लोगों को मुल्क पाकिस्तान में जीने का क्या हक है जो हर वक्त ये बात करते हैं पाकिस्तान डूब जाएगा, पाकिस्तान कल खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाए। हर वक्त यही बातें हो रही। अल्लाह के फजल से इस धरती पे बड़े लोगों का खून शामिल है, इसमें बड़े शोहदा की शहादतें शामिल हैं, इसमें हमारे बैठे हुए ये बुजुर्ग, यही आबाओ अजदाद जो कुर्बानियां देकर हिंदुस्तान से आए थे। इंशाअल्लाह इतनी जल्दी ये शोले बुझने वाले नहीं। हमें फख्र है इस बात पर, जितना इस धरती पे दीन का काम हुआ है, पूरी दुनिया में फिर लें, आपको ऐसे उलमा, ऐसे हुफ़ाज़, ऐसी मसाजिद, ऐसे मदारिस कहीं नहीं मिले अल्लाह के फजल से। और ये वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसको खुदादाद ममलिकत पाकिस्तान कहते हैं। वाहिद मुल्क है जिसके लॉ और कानून में ये बात शामिल है कि इस मुल्क का असल हाकिम अल्लाह की ज़ात है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, यहाँ असल हुक्मरान अल्लाह ताला है। यहाँ जो वजीर आज़म आएगा, यहाँ जो फौज का ऑफिसर आएगा, वो अल्लाह का नुमाइंदा बन के काम करेगा। ये वाहिद मुल्क है जहाँ आप अदालत में इस बुनियाद पर रिट कर सकते हैं कि ये मसला शरीयत के खिलाफ है। मैं इस मसले को तस्लीम नहीं करता। और जितनी मजहबी आज़ादी अल्लाह के फजल से इस देश में है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। जुमे के बयानों में लोगों को लिखे लिखाए खुतबे आते हैं, खुतबा पढ़ा जाता है, जेब में डाल के घरों को चले जाते हैं। ये वाहिद पाकिस्तान के मिंबर हैं जिन पे उलमा बैठ के हक बात, अपने दिल की आवाज़ आवाम के सामने कह सकते हैं। वरना बादशाहों की तारीफ़ों पे खुतबे शुरू होते हैं, बादशाहों की तारीफ़ों पे खुतबे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, एक बात जो करने लगा था कि सोशल मीडिया जो बड़ा महाज है, इस पे गलत खबरें ना फैलाएं, इस पे मायूस कुन खबरें ना फैलाएं। हौसले वाली बातें, आगे बढ़ने वाली बातें, वो बातें करें जो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं बदर के मैदान में मिक़दाद बिन असवद ने की थी। ऐ अल्लाह के नबी, हम आपको वो बात नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था। बनी इसराइल ने कहा था, ऐ मूसा तू जाने तेरा रब जाने, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम जिहाद नहीं कर सकते। बल्कि अल्लाह के नबी इमज़िलिमा अमरकल्लाह, आप आगे बढ़े, जो आप हुक्म करेंगे हम आपके हुक्म पर अपनी जानें लौटा देंगे। साद इब्ने मुआज खड़े होके कह रहे हैं,
اے اللہ کے نبی جس سے آپ کی صلح اس سے ہماری صلح، جس سے آپ کی لڑائی اس سے ہماری لڑائی، آپ برکے غماد تک جائیں ہم برکے غماد تک جائیں گے، آپ سمندروں میں کود جائیں ہم سمندر میں کود جائیں گے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اس موقع پہ میرے دوستو اپنی فوج کو، اپنے ملک پاکستان کی فوج کو تمام اختلافات بھلا کر یہ کہیں کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جس محاذ پہ لڑیں گے اگر ہم اس محاذ پہ جا کے آپ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے تو ہاتھ اٹھا کے آپ کے حق میں دعائیں ضرور کریں گے۔ کتنی شرم کی بات ہے، کسی کا غریب بچہ، کسی کا جوان بچہ، یہ جو ملک کی محاذ پہ سرحدوں پہ لڑنے والے، اللہ کی قسم کتنا بڑا خیر کا کام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو محاذ پہ سرحد پہ پہرا دینے کے لیے ایک دن گزار دے، ایک شام گزار دے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ کبھی کسی شہید فوجی کا جنازہ اٹھا کے دیکھنا، اس کے روتے ہوئے معصوم بچوں کے چہرے پہ دیکھنا، اس کے گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھنا، اور کیسے لوگ ہیں اس موقع پہ بھی طنز کر رہے ہوتے ہیں، اس موقع پہ بھی تانے دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ او اللہ کے واسطے بھائیو ایسا نہ کرو، اگر ہم نہیں لڑ سکتے، اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے تو کم از کم ان جانے والوں کو حوصلے تسلی تو دیں، ان کے گھر میں جا کے افسوس تو کریں۔ اس لیے بھائیو اختلاف میں نہیں کہتا آپ کہو پتہ نہیں مفتی صاحب فوج سے پیسے لے کے آئے ہوئے ہیں آج تعریفیں کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اختلاف آپ کو ہر کسی سے ہو سکتا ہے، کسی بھی سیاستدان سے ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی کی اصلاح، میں نے فلسطین کے مسئلے پہ فوج کے خلاف بولتا رہا ہوں یا ممبر پہ آڑے لیتا رہا ہوں، لیکن اب کوئی اچھا موقع ہو تو اس پہ ان کو سراہنا بھی چاہیے، حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ اس لیے بھائیوں گزارش کروں گا آپ سب حضرات سے، وقت بہت زیادہ ہو گیا، سوشل میڈیا پہ غلط خبریں نہ چلائیں، اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ مثبت بات کے اپنے اثرات، منفی بات کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ طالوت اور جالوت کے لشکر کا جب سامنا ہوا تھا تو کیا کہا؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، طالوت کے لشکر میں ایک قافلے نے کہہ دیا کہ ہم تو نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے، لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے کیا کہا؟ ان کا گھبرانے کی ضرورت نہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں اللہ ان کو بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کی نصرت کن کے ساتھ آئی؟ انہی کے ساتھ آئی۔ خندق کے موقع پہ منافقین نے کہا تھا اللہ کے نبی نے ہمیں مروا دیا، ایمان والوں نے کہا تھا نہیں نہیں یہی ہے وہ موقع جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے سچا وعدہ کیا۔ تو اس لیے بھائیو یہ غزوہ ہند کی میں نے شروع سے تفسیر سنائی، یہ غزوہ ہند ہے، اور انشاءاللہ ہماری فوج جو اس موقع پہ لڑے گی غزوہ ہند کا حصہ بنے گی، غزوہ ہند کے فضائل کی حقدار بنے گی۔ اور آپ سب حضرات سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو مثبت باتیں پھیلائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، صبر کا دامن تھامے رکھے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔